Hello students, welcome to the maths class. Today we start chapter number 10, more on fraction. In this chapter, first topic is equivalent fraction 2. So what is mean by equivalent fraction? Look at this. There are the 6 classes. Out of these 6 classes, 2 are filled with the water. So 2 of the 6 classes have water. Otherwise, we also see that there are the 2 rows of the classes. Each row has the 3 classes. Out of the 3 classes, 1 has water. 1 of every 3 classes has water. We say that 2 by 6 of classes have water. हम तो ये बोल सकते हैं कि 2 out of the 6 classes have water. Otherwise, we can say that 1 by 3 of the classes have water. Otherwise, हम ये भी कह सकते हैं that कि 1 out of these 3 classes have water. The fraction 2 by 6 and 1 by 3 show the same portion of the whole. मतलब चाहे हम 2 by 6 कहें या 1 by 3, but that represent the same portion of the whole. We say that 2 by 6 and 1 by 3 are equivalent fraction. That's why हम ये कह सकते हैं कि 2 by 6 and 1 by 3 ये equivalent fraction है. So equivalent fraction means if we multiply or divide the numerator and denominator of fraction by the same number other than 0, we get an equivalent fraction. Means कि when we multiply, जब हम multiply या divide करते हैं numerator और denominator को, ओके किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं बाय द सेम नंबर. सो वो सेम नंबर मतलब वो नंबर तो होगा लेकिन अदर देन 0 होना चाहिए. वो 0 नहीं हो सकता. सो हमें मिलता है वी गेट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. Let's do some question. So first question, use multiplication to write equivalent fraction. So we have to find the equivalent fraction of 3 by 7. So 3 by 7 का equivalent fraction हमें find out करना है. So write fraction first. सबसे पहले हमको fraction write करना है. Then we multiply numerator and denominator by the same number. Same number के साथ हमें numerator और denominator दोनों को multiply करना है. So multiply 3 by 2 and 7 by 2. मैंने यहाँ पे 7 लिया है. You will take any number. आप कोई भी नंबर ले सकते हो. 3 2s are 6. 7 2s are 14. So first equivalent fraction of 3 by 7 is 6 by 14. For finding the next fraction, we again multiply 3 by 7 by the same number. So 3 multiplied by 3 and 7 multiplied by 3. So next number मैंने 3 लिया है. आप कोई भी दूसरा नंबर ले सकते हो. 3 3s are 9. 7 3s are 21. So second equivalent fraction of 3 by 7 is 9 by 21. So इस वे से मल्टीप्लीकेशन करके आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यूज डिवीजन टू गेट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. So here we find the equivalent fraction of 12 and 18. 12 and 18 के आपको equivalent fraction find out करना है. बट पहले क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लीकेशन किया था, यहाँ हमको डिवीजन के थ्रू फाइंड आउट करना है. सो चूज द नंबर दैट विल डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 12 and 18. सो ऐसा नंबर आपको चूज करना है जिससे हम 12 को भी डिवाइड कर सके और 18 को डिवाइड कर सके. मीन्स ऐसा नंबर जिससे 12 and 18 दोनों डिविजिबल हो. सो फर्स्ट वी टेक 2 बिकॉज 12 and 18 बोथ आर इन अ टेबल ऑफ 2. सो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं. सो पहला नंबर जो है हम 2 लेंगे. सो 2 6 आर 12 and 2 9s are 18. So first equivalent fraction of 12 by 18 is 6 by 9. ये हो गया first. Then we have to find the next. So again we write 12 and 18.
and choose the next number that is other than 2 that divide the both 12 and 18 means 12 और 18 को डिविजिबल 12 और 18 जिससे डिविजिबल हो ऐसा सेकेंड नंबर। सो मैं यहाँ पे 3 लेती हूँ। 3 के भी टेबल में 12 एंड 18 दोनों आते हैं। आप 6 भी ले सकते हो, 6 के टेबल में भी आते हैं। सो 12 और 18 6 से भी डिविजिबल है। सो यहाँ पे हम लेते हैं 3 4 जा 12 3 6 जा 18। सो सेकेंड फ्रैक्शन इज 4/6। सो इस वे से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं बाय द डिवीजन। Next question is change into like fraction. Here we change those unlike fraction into the like fraction. So like fraction means what? Fractions with the same denominator are called as the like fraction. So जिनके denominator same होते हैं उसे हम like fraction कहते हैं. But here 4/15 and 3/5 those fraction have the different denominator. Different denominator मतलब unlike fraction हो गया. So we have to convert this unlike fraction into the like fraction. So unlike fraction को like fraction में convert करने के लिए हमें करना है cross multiplication. So first write the first fraction as it is. Then आपको जो first fraction है उसको second fraction के denominator से multiply करना है. So second का denominator है 5. So 4 into 5 by 15 into 5. 4 5s are 20. 15 5s are 75. Then हम नेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे 3/5 को. सो 3/5. देन हमें सेकेंड स्टेप में जो है सेकेंड फ्रैक्शन को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. सो 3 into 15 and 5 into 50. So 15 3s are 45 and 15 5s are 75. Now 20/75 and 45/75 both have the same denominator. So those are like fraction. So in next step 20/75 and 45/75 are like fractions. So इस वे से आपको like fractions में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट. मीन्स आपको ये बताना है कि गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है. सो यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो 2/5 एंड 8/20. सो ये हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करते हैं. सो आपको फर्स्ट का जो न्यूमरेटर है उसको सेकेंड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकेंड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. सो हियर 2 into 20 is equal to 40 and 5 into 8 is equal to 40. Both the product are equal. The products are equal. So अगर प्रोडक्ट इक्वल होते हैं सो फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं और अगर प्रोडक्ट डिफरेंट रहेंगे सो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट नहीं होंगे. सो देयरफॉर 2/5 and 8/20 are equivalent fractions. Are equivalent fractions. सो अगर ये प्रोडक्ट सेम आते हैं सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहते हैं और अगर नहीं आते हैं डिफरेंट आते हैं सो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग फ्रैक्शन. सो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है. देयर आर 2 कंडीशंस. दो कंडीशन होती है. एक तो न्यूमरेटर सबका सेम होना चाहिए अदरवाइज डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए. सो फर्स्ट अमॉन्ग द लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन मीन्स having denominator equal. The one with the greatest numerator is greatest. Means जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटेस्ट
फ्रैक्शन होगा। सेकेंड कंडीशन इज दैट अमॉन्ग द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर आर इक्वल, अगर सारे न्यूमरेटर इक्वल है सो वी ऑब्जर्व डिनोमिनेटर वन विद द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इज ग्रेटेस्ट, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलेस्ट होगा वो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। Look at here, compare fractions 4 by 13, 9 by 13, 2 by 13 and 5 by 13. Here all the fraction have the same denominator, सभी के सेम डिनोमिनेटर है, सो ये सारे लाइक फ्रैक्शंस है। सो लाइक फ्रैक्शंस के लिए क्या कंडीशन थी कि जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो ग्रेटर फ्रैक्शन है। सो द न्यूमरेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटेस्ट, है ना, इन सब में से ग्रेटेस्ट है 9, सो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। सो 9 by 13 ग्रेटर रहेगा, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। सो 9 by 13 इज ग्रेटेस्ट। नेक्स्ट 9 के बाद कौन सा आएगा 5 by 13, देन 4 by 13 एंड लास्टली 2 by 13। So greatest numerator, greatest fraction कब? When the denominator are same, जब denominator same है, but अगर numerator same है so condition has been changed। 5 by 11, 5 by 8, 5 by 16 and 5 by 23। सो यहाँ पे देखो सारे जो न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम होते हैं हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करते हैं, बट कंडीशन इज दैट कि डिनोमिनेटर जो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इज ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, है ना। सो स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर कौन सा है 8, सो 5 by 8 इज लार्जर देन और देन 5 by 11, then 5 by 16 and lastly 5 by 23. So those are the two conditions of comparing the fractions. अब ये तो हो गया कि अगर इक्वल टॉप है या इक्वल बॉटम है, बट अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है एंड वी हैव टू कंपेयर द अनलाइक फ्रैक्शन, in that case what we do? So first here we use the cross multiplication. So first write the both fraction, then इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या किया था, बस वही हमको यहाँ करना है। फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकेंड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 9 into 12, 9 into 12 is how much? So 9, 12 nines are 108, and next we multiply denominator of first fraction with the numerator of second fraction, then 14 into 7. So 14 into 7 is equal to 98. Okay, so then compare those product. आपको ये product जो है वो compare करने हैं। So 108 is greater than 98, therefore 9 by 14 is greater than 7 by 12। इस वे से आप इसे कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप दूसरी मेथड भी यूज कर सकते हो। सेकेंड मेथड इज 9 by 14 एंड 7 by 12। आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है मीन्स 9 by 14, 9 को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, 14 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, एंड 7 by 12 में 7 को फर्स्ट के डिनोमिनेटर दैट इज 14 से मल्टीप्लाई करना है, और 12 को अगेन 14 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ये मेथड करते हो तो भी आपको ओके। सो 9 into 12 होता है 108 एंड 14 into 12 इज 168, 7 into 14 is 98 and this is 168. Now those are in like fraction form, so like fractions है, so compare easily
ग्रेटर देन 98/168। सेम मेथड है, कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे आप डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो आंसर विल बी सेम, 9/14 इज ग्रेटर देन 7/12। थैंक यू।